عید میلاد النبی، لفظ میلاد النبی عربی کا لفظ ہے، اس کو سمجھنے کے بعد یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ولادت جب دنیا میں ہوئی طرح کے غریب بھائی میرے بھائی 300 روپے کی لائٹ آ رہی ہے، یہ جو مرچیں چھوٹی چھوٹی چائنا والوں نے نکالی ہے 300 روپے کی ایک لائٹ ہے، مجھے بتایا 300 روپے میں کون سی غریب کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے میرے بھائی؟ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو نیو ولاگ۔ تو رضوان بھائی آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں ہم فیصل بھائی کے پاس جا کے، اور ربیع الاول سے متعلق جو سوال جواب ہے نا، جو عوام کے ذہنوں میں جو سوال آتے ہیں ربیع الاول سے متعلق، تو اس کے سوال جواب کرتے ہیں چل کے فیصل بھائی سے، تو انشاءاللہ تاکہ عوام کے ذہنوں میں جو سوال ہیں اور جو غلط فہمیاں عوام کے ذہنوں میں جو ہے ربیع الاول سے متعلق وہ انشاءاللہ ان کی دور ہوں گی، عوام کی رہنمائی بھی ہوگی اور ثواب کا کام بھی ہے۔ تو آج کا ولاگ ہم اپنا سوال جواب پہ بناتے ہیں ربیع الاول سے متعلق، تو ربیع الاول سے متعلق جو بھی سوال جواب ہوں گے انشاءاللہ فیصل بھائی سے جا کے کوشش کریں گے ان کی رہنمائی لیں گے، تاکہ انشاءاللہ پہلے بھی لیتے رہیں اور اب بھی لیں گے فیصل بھائی کی رہنمائی، تاکہ عوام کے ذہن میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں ربیع الاول سے متعلق، تاکہ عوام خوب جوش و خروش سے ربیع الاول منائیں اور خوب نعرے لگائیں۔ چلیں بھی فیصل بھائی کے پاس، چلتے ہیں فیصل بھائی کے پاس۔ السلام علیکم فیصل بھائی، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ رضوان بھائی؟ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، کرم عثمانی کا۔ آپ سنائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اس کے رسول کا خاص کرم۔ فیصل بھائی ہم آپ کے پاس آئے تھے کہ ربیع الاول سے متعلق چند سوال تھے ہمارے ذہنوں میں، جو عوام کے ذہنوں میں بھی ہیں کہ ربیع الاول کیوں مناتے ہیں، کیسے مناتے ہیں۔ یہ 2-3 سوال ہیں جو عوام میں چل رہے ہیں، تو اس کے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ جوابات دیں، تو آپ علم رکھتے ہیں، حافظ قرآن ماشاء اللہ، علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، تو آپ اس کا جواب دینا پسند کریں گے؟ ہاں کیوں نہیں، بالکل، جو اللہ پاک نے عطا فرمایا، جو علماء کی صحبت میں رہتے ہوئے کچھ اپنا علم کے موتی اکٹھا کیے ہیں، انشاءاللہ اس کے جواب دیں گے ضرور، انشاءاللہ بن پڑا تو اللہ نے چاہا۔ اچھا فیصل بھائی، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ عید المیلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کیا ہے؟ تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ تو رضوان بھائی یہ جو آپ کا سوال ہے، اگر میں یہ بولوں کہ مسلمان کے بچے کو پتہ ہے کہ یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا، اور یہ ہمارے ہر مسلمان کے بچے کو پتہ ہونا بھی لازمی چاہیے، اور جو نہیں بتاتے تو یہ ہمارے والدین کی، پیرنٹس کی، ہمارے ٹیچرز وغیرہ جو ان کی بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنے بچوں کو ان بیسک باتوں کا نہیں بتائیں گے تو ہمارے بچوں کی بیس مضبوط نہیں ہوگی، ان کو پتہ نہیں چلے گا اپنے مذہب کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، اپنے اسلام کے بارے میں۔ تو میں یہ عرض کروں گا آپ سے کہ جتنے بھی ہمارے والدین ہیں، پیرنٹس ہیں، ہمارے ٹیچرز حضرات ہیں، تمام سے یہی گزارش ہے کہ کائنڈلی اپنی جہاں جہاں آپ کا اپنا اسکول ہے، مدرسہ ہے، گھر ہے، تو اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا۔ تو میں اس کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا کیونکہ آپ کو پتہ عوام ہے تو یہ سنتی ہے۔ تو عید میلاد النبی، لفظ میلاد النبی عربی کا لفظ ہے، اس کو سمجھنے کے بعد یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ولادت جب دنیا میں ہوئی ہے تو اس کو عید میلاد النبی کہتے ہیں، اور یہ وہ رسول ہیں جو تمام نبیوں کے، رسولوں کے سردار اعظم ہیں اور تمام نبیوں کے آخری ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اس وقت ختم نبوت کا بھی مسئلہ چل رہا ہے، تو یہ بھی ہمارے بچوں کو نالج ہونی چاہیے کہ ختم نبوت ہے کیا اور ہمارے آخری نبی ہیں کون۔ تو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم جو اصل بیسک وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانا، سمپل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے اور اس پر ہم نے خوشی کا اظہار فرمانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اظہار کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، تو فی زمانہ جو چل رہا ہوتا ہے رواج، تو اسی کو دیکھتے ہوئے جو قرآن و حدیث سے ٹکرائے نہیں، اسی کے مطابق جو ہے ہم نے وہ خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ ہاں جو علماء اہل سنت نے بیان فرمایا اسی کو فالو کریں تو انشاءاللہ اس میں دونوں جہاں کی برکتیں اور بیڑا پار ہو جائے گا۔ اچھا، اسی سوال کو میں آگے لے کے چلتا ہوں کہ آپ نے بولا کہ عید المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی منانا ہے، تو لوگ کہتے ہیں اس دن تو حضور کی وفات ہوئی تھی، تو خوشی کیسی؟ تو اصل میں یہ علماء کی ابحاث ہیں، علماء اس میں بہتر جانتے ہیں اور بہت سارا کلام کر چکے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن حدیث پاک میرا بھی ایک دم ذہن میں آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا مفہوم ہے حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا تمہارے اندر حیات رہنا، زندہ رہنا بھی خیر ہے، اور وصال فرما جانا بھی یہ خیر کا باعث ہے۔ اور پھر رہی بات جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ
अपना खुशी कैसी गम होना चाहिए। तो अभी मुहर्रम गुजरा आपको पता है, तो मुहर्रम में वो हजरात यही सवाल कर रहे थे कि भाई ये इमाम हुसैन का जो वाकया हुआ था करबला, तो 61 हिजरी में हुआ था, अब तो वो खत्म हो गया, तो भाई गम किस चीज का। लेकिन जैसे ही रबीउल अव्वल शुरू होता है तो उनका ये सवाल उल्टा पड़ जाता है, भाई गम मनाओ। तो गम तो जो है भाई वो 3 दिन का होता है, 3 दिन से ज्यादा तो गम है ही नहीं। और फिर गम तो वही मनाए ना भाई जिसके नबी मर चुके हैं, हमारे नबी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी जिसमें अतहर के साथ मदीने मुनव्वरा में अपनी खबर अनवर में आराम फरमा रहे हैं। हमारा तो ये अकीदा है। तो भारत जो कहते हैं कि वफात है, चले चलो उनको बोलते हैं चले आप वफात 12 रबीउल अव्वल को वफात है ना, चले 12 रबीउल अव्वल को नहीं मनाते। लेकिन भाई विलादत भी तो है ना, विलादत हुई है तो वफात हुई है ना। अब कोई बंदा पैदा हुआ है तो ही इस दुनिया से गया है ना, अब कोई दुनिया में आया नहीं है, वो दुनिया से कैसे चले आएगा। तो जो बंदा दुनिया में आया है तो उसकी वफात हुई है, ये अंडरस्टूड बात। तो अब जब आप वफात मान रहे हैं कि 12 रबीउल, चलो हमने मान लिया यार कि 12 रबीउल अव्वल ही वफात है, लेकिन विलादत भी तो हुई है ना। कब हुई है? 8 को ही होगी, 10 को ही होगी, 17 है, 18 है, 13 है तो रबीउल अव्वल का महीना पीर का दिन है, लेकिन विलादत हुई तो है ना। और दिन भी होगा, तारीख भी होगी। तो अब कौन सी दिन है? हम तो कोई लड़ाई झगड़े वाली बात ही नहीं है यार, हम तो आशिक लोग हैं, हुजूर के नाम पर तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने वाले हैं। सिंपल सी बात यही है, अगर 12 रबीउल अव्वल को वफात है तो 11 को विलादत होगी, 11 को तो नहीं है 10 को होगी, 10 को नहीं है तो 8 9 कुछ कोई तो तारीख होगी ना भाई। आप उसी तारीख को खुशी मना लो यार। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? ये तो एक सिर्फ एक शैतानी वसवसा है और ये शर फैलाना है, गलत फहमियां कि यार विशाल है फलाना। और भाई विशाल को छोड़ो आप, जिस दिन विलादत हुई है 8 रबीउल अव्वल को, 8 रबीउल अव्वल को कर लो, हम आपके घर में आके महफिल मिलाद कर लेंगे। महफिल मिलाद मतलब सरकार अलैहिस्सलाम का जिक्र करना है, हुजूर की शान बयान करना, हुजूर के फजाइल और कमालात बयान करना, हुजूर के मोअज़िज़ात को बयान करना, ये है जो कुरान और हदीस से साबित है। More moments later. अच्छा फैसल भाई, आपने बोला चलो खुशी बनाएं, ये करें, सब कुछ ठीक है, तो खुशी में क्या झंडे लगाना, लाइटें लगाना, ये कहाँ से साबित है कि वो खुशी में झंडे ही लगाए जाएंगे, लाइटें ही लगाई जाएंगी? क्यों ना हम इन पैसों का किसी गरीब की मदद कर दी जाए, किसी गरीब की शादी करा दी जाए, किसी बेवा यतीम की इमदाद कर दी जाए। जरूरी है कि यही करना, हमें लाइटें और झंडे लगाना खुशी में? असल में अपना रिजवान भाई बात ये है कि खुशी का इजहार करना, ठीक है। अब वो किसी भी तरीके से हो, जायज तरीके से हो, तो इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये वो लोग हजरात होते हैं जो मिसाल के तौर उन्होंने कहीं ना कहीं वो बस वो एतराज उठाना है, नुक्ताचीनी करनी है, इशू बनाना है कि नहीं ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों ऐसा। अब मेरे भाई मुझे एक बात बताएं कि ये जो लोग कहते हैं कि झंडे झंडे लगाना, मैंने आपको अर्ज किया ना कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और हदीस से बिल्कुल साबित है। अगर कोई माया के लाल बोले ना कि ऐसा नहीं, हवा में तीर में चैलेंज करता हूँ, आगे मुझसे फेस टू फेस बात कर ले, ये खुला चैनल है, आपके चैनल के तवज्जुह से मैं आप डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, बड़े वसूख से जिम्मेदारी से, वो आगे मुझसे फेस टू फेस बात कर ले, चाहे कितना बड़ा चैंपियन है, ठीक है। कि पहले पहले तो मेरी लाजमी सी बात है, जब वो आगे फेस टू फेस बात करेगा तो हम उसको जरा जांच पड़ताल तो करेंगे, ये क्या चीज भाई, तो आप इतना बड़ा एतराज करो तो पता चलो आपकी हैसियत क्या है। एक बात, दूसरी बात ये है कि झंडे लगाना बिल्कुल खसाइसुल कुबरा किताब का नाम है, ठीक है। हजरत आमना हदीस पाक मखदूम हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद शहादत हुई ना, तो 3 झंडे जिब्रील अमीन तशरीफ लेके आए, और एक मशरिक एक मगरिब, एक मशरिक एक मगरिब और एक काबतुल्लाह की छत पर वहां आपने नसब फरमाया, ठीक है। तो ये हदीस पाक मुबारक खसाइसुल कुबरा में मतलब रिवायत मौजूद है, तो उलमा ने इससे ले ली है, और ये मुसल्लमा उसूल है। अगर कोई शख्स इसकी सनद पर कलाम भी करे ना, उलमा जानते हैं इस चीज को, आवाम को क्या पता होगा कि सनद क्या होती है, रावी क्या होता है। तो सनद के अगर उसके ऊपर कोई कलाम भी करता है और वो कहता है कि यार ये ज़ईफ है हदीस, तो भाई ये मुसल्लमा उसूल है ये कि अगर ज़ईफ हदीस भी है ना तो वो फजाइल में कबूल होती है, एक्सेप्टेबल होती है, ठीक है ना। तो ये छोड़ देंगे। झंडे कहाँ थे? झंडे ये इस मतलब रिवायत से साबित है। फिर रही बात कि झंडे लगाना, लाइटें लगाना, ये ना हम इसको फर्ज कहते हैं, ना इसको हम वाजिब कहते हैं, ना हम इसको सुन्नत कहते हैं, ठीक है ना। मुस्ताहब के दर्जे में भी अगर उलमा कहते हैं तो वो भी उसके ऊपर नियत के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो रही बात ये, फिर मैंने जैसे पहले शुरू में अर्ज किया ना कि जो फी जमाना, हर जमाने में अलग अलग चीजें होती हैं, तो वो जो जिस मिसाल के तौर पर पहले के जमाने में चाकू छुरी जो तलवारें होती थी इससे जंग होती थी, लेकिन इस दौर में कौन चाकू छुरी से कोई तलवार जंग लड़ेगा? आप उसको बेवकूफ कहेंगे, क्योंकि अब तो एटमी ताकत है, हम भी पाकिस्तान में एटमी ताकत है और एटमी बम है, जदीद हथियार हैं और गन्स वगैरह, क्या कुछ नहीं है। अगर इसके बावजूद अगर कोई जाके बॉर्डर पे वो तलवार से लगे और सामने वाला जो है वो फायर कर रहा हो, तो उसको आप अक्लमंदी तो नहीं कहेंगे ना, बेवकूफ भी कहेंगे। तो भी जमाने में ये लाइटिंग जो है लाजमी सी बात है ये है, तो इसको अगर कोई बंदा ये लगाकर खुशी का इजहार करता है, इसमें कोई मतलब गलत बात है ही नहीं। एक बात, दूसरी बात,
अच्छा, फिर लोग बोलते हैं कि इस पैसों से ये बेहतर है कि गरीब। भाई मेरे भाई 300 रुपए की लाइट आ रही है, ये जो मिर्चें छोटी छोटी ये चाइना वालों ने निकाली है, 300 रुपए की एक लाइट है। मुझे बताया 300 रुपए में कौन सी गरीब की बेटी की शादी हो रही है मेरे भाई, और कौन सी गरीब की बेटी के घर में राशन डल रहा है, जरा मुझे इसका तो बताएं। 3 लाख में भी नहीं हो रही आजकल। 3 लाख क्या मेरे भाई, आप यकीन करें 10-10 लाख रुपए में भी शादी जो है ना, मतलब अल्लाह माँ फरमाए, जो महंगाई और जो हालत हो गए हैं, आप सब जानते हैं, हम भी इसी शहर में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, हर एक बंदे से जानते हैं, सलाम दुआ है। तो मेरे भाई 300 रुपए में कौन सी बेटी की घर में मतलब शादी हो रही है, कौन सी किसी बेटी के घर में जो राशन डल रहा है। तो ये सिर्फ एक जो है ना, मतलब वो शैतानी वसवसे और लोगों को गलत फहमियां। अच्छा, फिर रही बात जो ये एतराज कर रहा होता है ना, एक गरीब की बेटी की यार शादी, आप यकीन करें उसके हाथ में अगर मोबाइल देखेंगे ना, कम से कम 50,000 लाख रुपए का मोबाइल होगा, तो मेरे भाई 30,000 वाले और 20,000 वाले में भी वही काम हो जाएगा जो 50,000 वाले में। ठीक है, लेकिन आप गरीब, उस वक्त गरीब आपको याद नहीं आता है। ठीक है, फिर रही बात ये कि और भी अगर आप दीगर मामला, बात ये कि आपका आपका व्लॉग जो बहुत ज्यादा ही तवील हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, मैं इतना मतलब बात नहीं करना चाहता, सिर्फ मोटी मोटी बात ये कर रहा हूँ कि उन्हीं हजरात के जब आप घर में देखेंगे ना, तो बाइक 70 है जो इस वक्त तकरीबन 1.5 लाख रुपए की, लेकिन उनके आप हजरात के घर में देखेंगे तो 150 125 3-3 4 लाख की गाड़ियां हैं। तो भाई वही काम 70 में हो रहा है, 50 में भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप क्यों 125 रख के घूम रहे हैं भाई, समझ में? उस वक्त आपको गरीब की बेटी याद नहीं आती है, उस वक्त आपको गरीब का ख्याल नहीं आता है। और मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जितने ये रबीउल अव्वल मनाने वाले, 11वीं शरीफ मनाने वाले, छठी शरीफ मनाने वाले, और जितने लोग हैं, ये जितने लोग भी है ना, नजर न्याज से, मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, ये सबसे ज्यादा गरीब का ख्याल करते हैं। आई आपकी समझ में? सबसे ज्यादा यही गरीब का ख्याल करते हैं। और ये जितने जो फजूल के जो एतराज करते हैं कि यार ये हो गया वो हो गया, आप यकीन करें जब गरीब का वक्त आता है ना, ये दूर दूर तक दिखेंगे भी नहीं। आ रही है मेरी बात? तो ये फजूल की बात है कि ये गरीब की शादी करवा दें, फलाना की शादी करा दें। अगर यही एतराज है तो फिर आप काबतुल्लाह में हर साल जो अपना गिलाफ काबा चेंज होता है ना, अरबों रुपए लगते हैं पाकिस्तानी। तो मेरे भाई उस अरबों रुपए का आप ना वो हर साल फटता है, ना वो डैमेज होता है कहीं से, लेकिन उसको चेंज करते हैं। तो उसके बेहतर नहीं है कि वो उनको ये मशवरा दिया जाए कि यार आप जो अपना ये काबे के जो अरबों रुपए लग रहे हैं इसको बचा के किसी गरीब को दें। उसमें तो पता नहीं कितनी, मैं बोलता हूँ सैकड़ों गरीब की बेटियों की शादियां हो जाएंगी, घर बस जाएंगे। समझे आप? तो वहां पर कोई इतराज नहीं करे, अपनी मसाजिद देख रहे हैं, अपने घर देख रहे हैं, अपना रहन सहन देख लें, अपना लाइफ स्टाइल देख लें, तो अपने आप को गरीबान में जाके तो बेहतर ये है कि जो जिस तरह खुशी का इजहार कर रहा है उसको करने दिया जाए। और जो हम तो बोलते भाई आपको नहीं मनाना मत मना, दिल बताओ कब दुख कब होता है कि आप एतराज करते हो कि भाई ये क्यों हो रहा है। तो फिर उसका जब जवाब दिया है तो फिर आप लोग को नीचे जो ऊपर तक मतलब मामला फिर आउट हो जाते हैं। तो मैं वो लैंग्वेज वो जबान इस्तेमाल करना नहीं चाहता। तो यही है कि झंडे और फी जमाना है, लाइटें हैं, बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे, और किसी को बुरा लगता है वक्त है। बाकी 300 रुपए में अगर किसी की बेटी की शादी होती है गरीब की, तो भाई मेरे पास जाओ, मैं खुदा की कसम खा के बोल रहा हूँ 4 फैमिली की मैं शादी करवा दूंगा। ठीक है रिजवान भाई, आपकी चैनल के तवज्जुह से। अच्छा, आखिरी में मैं आपसे पूछूंगा कि आप बारह के हवाले से अपने व्यूअर्स को वगैरह को उनको कोई पैगाम देना चाह रहे हैं? मैं, हाँ, ये बिल्कुल ये भी एक मैसेज है कि काइंडली, जैसी इससे पहले हमारे रिजवान भाई आपने सवाल करा, तो मैं आप सबसे यही अर्ज करूंगा कि हमारे जो उलमा है, अहले सुन्नत ने, मशाइख अहले सुन्नत ने जिस तरह ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का कहा है, तरीका बताया है, काइंडली उसी हिसाब से उसी तरीके के मुताबिक मनाया जाए। हमारे यहाँ होता ये है कि अवाम जो है वो अपने अंदाज में निकल जाती है, जिसकी मर्जी चाहती है वो ट्रक पे वो साउंड लगाए और निकल गए बस। तो अब इससे जैसी जो आपने सवाल किया ना, ये अवामी गलत फहमियां, इसी इसी वजह से ये पैदा हो गया। आप यकीन करें जो मरकजी जुलूस निकलता है, दावत इस्लामी का भी निकलता है, जमात अहले सुन्नत का भी तमाम का निकलता है, गोल्डन मार्केट से लेके नेशनल पार्क तक, आप देखें उसमें एक भी आपको लेडीज नहीं मिलेगी, एक भी बेहुदा हरकत करता हुआ कोई नहीं मिलेगा। क्यों? वो उलमा की क़यादत में। बाकी जो आवाम अपने हिसाब से निकाली तो उसके जिम्मेदार हमारा मसलक नहीं है, हमारे उलमा मशाइख नहीं है, वो अपने आवाम खुद जिम्मेदार है। क्योंकि हर आलिम अपने मिंबर और उस पे बैठ कर और अपने महफिलों में जहाँ भी जाते हैं वहाँ जाके अपने फर्ज पूरा कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि ये सही है, ये गलत है। तो मैं यही मैसेज दूंगा आवाम को कि भाई आप किसी के भी वसवसे में भी नहीं आए, और जो उलमा और मशाइख अहले सुन्नत ने तरीक़ेकार बयान किया है उसके मुताबिक जो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाएं, और खूब जोश और खरोश के साथ ना, खूब। नहीं है आपके पास लाइट के पैसे मत लगाएं, आपके पास झंडे के पैसे नहीं है नहीं लगाएं, लेकिन आपके घर में खाने को तो होगा ना यार। तो आप उसी को घर में बना के अच्छी तरीके से नियत कर लें, सरकार अलैहिस्सलाम के नाम पर उसको आप साले सवाब करें। और दुरूद शरीफ तो आप उसमें तो पैसे नहीं लग रहे, दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें और जश्न मिलाद मनाएं और जुलूस में शिरकत करें हो सके तो। और लेडीज को, खवातीन को काइंडली अपनी जो उसको घरों में रखें। बड़ी मेहरबानी, आप सबसे यही गुजारिश है, ताकि ना लेडीज बाहर निकलेगी और ना ही
जो भी ये खुराफात होती है ना, इससे अवाम जो भी अवामें जो लोग अवाम कर रही है ना उल्टी सी हरकतें, इससे उलमा अहले सुन्नत का मसलक अहले सुन्नत का कोई ताल्लुक नहीं, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, अगर कोई शख्स अपने आपको अहले सुन्नत कहता है तो कहता रहे। मैं इसकी मिसाल यही कहता हूँ, देखें कि अगर कोई मस्जिद में अगर कुत्ता आ जाए तो आप क्या करेंगे? मस्जिद गिराएंगे, कुत्ते को निकालेंगे? बताएं मुझे। कुत्ते को ही निकालेंगे। कुत्ते को निकालेंगे, जाहिर सी बात है, समझदारी अकलमंदी की यही निशानी है। अब कुत्ते को बाहर निकालेंगे, मस्जिद को थोड़ी गिराएंगे। वरना अगर हम इसको लेंगे तो काबतुल्लाह में चोरियां होती है भाई, काबतुल्लाह में जेबें कड़ी जाती हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह होके आया हूँ, आप भी माशाल्लाह गए, अल्लाह पाक हम सबको जो लोग देख रहे हैं उनको दोबारा लेके जाए। तो मक्कातुल मुकर्रम में लोग भीख भी मांगते हैं, चोरियां भी हो जाती, तो क्या करें? छोड़ दे जाना, हज करना छोड़ दे, ऐसा नहीं होता। तो चीज जो अमल जायज है, अगर उसमें कोई खराबी वाली चीज दाखिल हो रही है तो काइंडली उसको बाहर निकालें। ठीक है, और उस अमल से ये नहीं होता कि वो अमल खराब हो जाता है, वो अमल जायज ही रहता है, सिर्फ उस चीज को निकाल दिया जाए। मेरे ख्याल से यही मैसेज है कि सबको मेरी तरफ से और आपके चैनल के तवज्जुह से रबीउल अव्वल और जश्न मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। और रबीउल अव्वल की आमद जितने भी जुलूस रैलियां हों, अल्लाह पाक खैर और आफियत वाला मामला फरमाए। आपको पता है पाकिस्तान के कराची की हालत कैसे है, तो बस यही है कि अल्लाह पाक हर मामले में खैर और आफियत फरमाए और तमाम उलमा माशाअल्लाह सुन्नत की भी हिफाजत फरमाए। थैंक यू वेरी मच। आपने ये सवाल किए, अगर मेरे से दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो तो मैं अपने रब के हुजूर माजरत का और माफ़ी का तलबगार हूँ। अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमाए और हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत व बख्शिश फरमाए और हुजूर की विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब जोश व खरोश के साथ जब तक जिंदा हैं हमें मनाने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई, जज़ाकल्लाह खैर, आपने सवालात के जवाब दिए। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको फिर बुलाएंगे और इसी तरह आवाम के सवालात जैसे भी होंगे वो हम लोगों को देंगे और उनके मसले हल करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा, नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।